آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ جنوری سے دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم کا ہوگا آغاز۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وزیر اعظم نریندر مودی کریں گے افتتاح۔ ویکسین کی سربراہی میں ریاستوں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں، ہرش وردھن کا تاثر۔ تمام ریاستوں کو ضرورت کے مطابق ویکسین کی جا رہی ہے سپلائی۔ دلی میں آرمز فورسز ویٹرنز ڈے کا اہتمام۔ گزشتہ سال فوج کے لیے رہا چیلنجوں بھرا، آرمی سربراہ ایم نروانے کا انکشاف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذہ، ایوان نمائندگان میں اکثریت کے ساتھ منظور۔ 20 جنوری کو جو بائیڈن صدارتی عہدے کا لیں گے حلف۔ اور دونوں تلگو ریاستوں میں سنکرانتی تہوار کا جوش و خروش، صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کے بشمول سرکردہ قائدین نے دی عوام کو مبارکباد۔ عوام کو کورونا کے پھیلاؤ کے بارے میں چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ دوسروں سے بات کرتے ہوں تو ماسک کا استعمال کریں، کم سے کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق بار بار ہاتھ دھوئیں۔ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے کورونا کو روکا جا سکتا ہے۔ ہفتے سے ہندوستان میں کورونا ٹیکہ کاری کی دنیا کی سب سے بڑی مہم شروع ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہم کا افتتاح کریں گے۔ اس مہم کو وزیر اعظم ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے لانچ کریں گے۔ اس موقع پر وہ چند منتخب اسپتالوں کے طبی عملے کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اتر پردیش، ہریانہ اور دلی کے چند اسپتالوں میں اس کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ دلی کے لوک نائک جے پرکاش نارائن اسپتال جو کورونا علاج میں سب سے آگے ہے، یہاں کورونا ویکسین دی جائے گی۔ اس تقریب میں دلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال بھی موجود رہیں گے۔ مرکزی وزارت صحت نے واضح کیا ہے کہ ویکسین کی سربراہی میں ریاستوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق ریاستوں کو درکار ویکسین تقسیم کی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں فرنٹ لائن واریئرز کے تناسب سے تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے لیے 1,65,00,000 کو ویکسین کووڈ شیلڈ ٹیکے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، آنے والے دنوں میں مزید ویکسین تقسیم کیے جائیں گے۔ ملک بھر میں کورونا کی ٹیکہ کاری کی مہم کی تیاریوں میں تیزی لائی گئی ہے۔ ادھر تلنگانہ ریاست میں بھی انتظامات تیزی لائی گئی ہے۔ حیدرآباد سے ضلع مستقر کے لیے سخت سیکیورٹی اور خصوصی انسولیٹر گاڑیوں میں ویکسین کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ کس ضلع کو کتنی ویکسین دی جانی چاہیے، اس کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے ایک منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ پونے کے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا سے تقریباً 3,64,000 ڈوز پہنچ گئے ہیں۔ آج 20,000 کو ویکسین کے ڈوز وصول ہوئے ہیں۔ یہ ویکسین پہلے مشترکہ اضلاع کے علاقائی اسٹوریج مراکز کو منتقل کیے جائیں گے، جہاں سے یہ ڈوز اضلاع کو سربراہ کیے جائیں گے۔ ٹیکہ کاری کے لیے درکار 15 لاکھ سرنج اضلاع کو سربراہ کیے جا چکے ہیں۔ محکمہ صحت کے ڈائریکٹر سرینواس راؤ نے ویکسین کی سپلائی اور ٹیکہ کاری کے سلسلے میں تمام اضلاع کے DMHO کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کی اور اس امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس ویڈیو کانفرنسنگ میں محکمہ صحت کے پرنسپل سیکریٹری سید مرتضی رضوی، یونیسیف عہدیداروں نے شرکت کی۔ حکومت کی جانب سے پہلے دن ہر مرکز پر 30 افراد کو ٹیکہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ریاست بھر کے 139 مراکز پر ٹیکہ کاری انجام دی جائے گی۔ ان میں سرکاری میڈیکل کالجز، سرکاری دواخانے اور پرائمری ہیلتھ سینٹر شامل ہیں، جبکہ 40 خانگی دواخانوں میں بھی ٹیکہ کاری کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی گاندھی اسپتال کے پرائمری ہیلتھ سینٹر کے طبی عملے سے 16 جنوری کو تبادلہ خیال کریں گے۔ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے ٹیکوں کی تقسیم کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ پونے کے سیرم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کووڈ شیلڈ ٹیکہ منگل کو پونے سے حیدرآباد بھیجے گئے تھے، تاہم تازہ طور پر بھارت بائیو ٹیک کا کوویکسین ٹیکہ کی ریاستوں کی تقسیم کا کام شروع کیا گیا ہے۔ بدھ کی صبح تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد سے قومی دارالحکومت دلی کو یہ ٹیکے بذریعہ طیارہ بھیجے گئے اور صبح 9 بجے یہ ٹیکے دلی پہنچ گئے۔ دلی کے بشمول یہ ٹیکے ملک کے 11 شہروں کو بھیجے گئے۔ دلی، پٹنہ، لکھنؤ، چنئی، جے پور، بنگلورو، وجے گوہاٹی، پونے، کرکشیتر، بھونیشور کو یہ ٹیکے بھیجے گئے۔ ان میں 38.5 لاکھ ڈوز کو مرکز نے خریدا ہے، جبکہ تقریباً 16.5 لاکھ ڈوز بھارت بائیو ٹیک نے حکومت کو مفت فراہم کیے ہیں۔ ایئر انڈیا کے طیارے AI-559 کے ذریعے بدھ کی صبح 6:40 پر تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد سے یہ ٹیکے قومی دارالحکومت بھیجے گئے، جو تقریباً 9 بجے دلی پہنچ گئے۔
एयरपोर्ट से इन टीकों को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मुंतकिल किए गए। मुल्क भर में 16 जनवरी से टीका अंदाजे की मुहिम बड़े पैमाने पर चलाई जाएगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। 54.72 लाख डोज वैक्सीन रियासतों को भेजी गई। मरकजी हुकूमत ने पहले ही ऐलान किया है कि इस टीके के मसारिफ रियासतें नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ओहदेदारों का कहना है कि 16 जनवरी को शुरू होने वाले टीका अंदाजी के प्रोग्राम को एक हफ्ते के अंदर ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोरोना का पहला टीका लेने के 28 दिन बाद दूसरा टीका दिया जाएगा। इस तरह 16 फरवरी से दूसरी खुराक दी जाएगी। मार्च के तीसरे हफ्ते तक महकमे सेहत और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 मरहलों में 2 खुराक दे दी जाएगी। दिल्ली में हिंदुस्तानी अफवाज के साबिक फौजियों का दिन यानी वेटरन्स डे तकरीब का एहतमाम किया गया। वाज़ेह रहे कि हर साल 14 जनवरी को फौज में खिदमत अंजाम दे चुके अफराद के एजाज़ में इस दिन का एहतमाम किया जाता है। 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग में जीत की 50वीं सालगिरह के मौके पर रवा साल वेटरन्स डे को स्वर्णम विजय वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है, यानी साल भर इस ज़िमन में तकारीबात का एहतमाम किया जाएगा। इस तकरीब में आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए नरवाने ने कहा कि गुज़िश्ता साल फौजियों के लिए चैलेंजों से भरा साल रहा। उन्होंने कहा कि फौज ने सरहदों की हिफाजत के साथ साथ कोरोना की मुश्किल घड़ी में भी अपनी नुमाया खिदमत से मुल्क का दिल जीत लिया है। इस तकरीब से खिताब करते हुए साबिक फौजियों ने अपने एहसासात और तासुरात को पेश किया। सक्रिय होकर देश की उन्नति और समाज सुधारों में अग्रसर हैं। आप हमारे सेना के एम्बेसडर बनकर देशवासियों को एक सच्चा देशभक्त और जिम्मेदार नागरिक बनने के श्रेष्ठ उदाहरण दे रहे हैं। आपके द्वारा स्थापित कुछ मापदंड हमारे देश के युवाओं को प्रेरित करता है। पिछले वर्ष हमारे देश और सेना के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। सेना उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा में दृढ़ता से डटी रही और साथ समाज में खवातीन को तमाम शोबेजात में मर्दों के मुसावी खड़ा करने के लिए रामागुंडम में वाक़ NTPC की जानिब से नुमाया कोशिश की जा रही है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत महकमे बरक़ी में जूनियर लाइनमैन के लिए मुंतखब हुई खवातीन को टावर क्लाइंबिंग की तरबियत फराहम की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में वाक़ NTPC की जानिब से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुस्न खूबी अंजाम दिया जा रहा है। ख़वातीन को समाज में मसावियाना हुकूक़ दिलाने की उम्दा कोशिश की जा रही है। इस ज़मन में रियासत के महकमे बरक़ी में जूनियर लाइनमैन के लिए दरख्वास्त देने वाली 20 ख़वातीन को NTPC CSR के ज़रिए एहतमाम मुफ्त तरबियत फराहम की गई, जिसकी वजह से ये तमाम ख़वातीन तहरीर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। बहुत जल्द इन ख़वातीन को बरक़ी खंभों पर चढ़ने की तरबियत भी फराहम की जाएगी। इसके अलावा NTPC की जानिब से आसपास गाँव में 5वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात को जेम नाम से रेसिडेंशियल तर्ज पर 100 तलबा को 100 दिनों की तरबियत दी जा रही है। इस तरबियत के दौरान तलबा को स्टडी मटेरियल और जूनियर लाइनमैन उम्मीदवारों को ट्रैक सूट दिया जा रहा है। NTPC की तरबियत हासिल करने वाली जूनियर लाइनमैन उम्मीदवारों का कहना है कि वो इस तरबियत से ही तहरीर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की हैं और टावर क्लाइंबिंग तरबियत से भी इन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। మేము TS ట్రాన్స్కోలో JLMలో రిటర్న్ టెస్ట్ పాస్ అయ్యి మెరిట్ లిస్ట్లో ఉన్నాము. అప్పుడు ఎగ్జామ్ టైంలో NTPC ద్వారా మేము ఫ్రీ కోచింగ్ తీసుకున్నాము. రిటర్న్ టెస్ట్లో పాస్ అయ్యాము. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ టవర్ క్లైంబింగ్ కోసం ట్రైనింగ్ కోసం మేము NTPC వాళ్ళని ఆశ్రయించాం. NTPC వారు CSR CD ఆధ్వర్యంలో మాకు టవర్ క్లైంబింగ్ ట్రైనింగ్ ఫ్రీగా మాకు అందిస్తున్నందుకు మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము. दीप्ति महिला समिति की सदनशीन उषा कुमार ने कहा कि इस तरबियत से खवातीन में खुद एतमादी पैदा हो रही है। NTPC की ओर से ये रियल जेम्स हैं, इनके लिए आप लोगों ने CSR और HR ने मिलकर बहुत कठिन परिश्रम किया है। रियल जेम्स को लड़कियां रियल जेम्स आप लोग हैं। बस ज़रूरत है आप लोगों की परखने की, तराशने की और गढ़ने की, और ये काम हमारे CSR और NTPC के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने बखूबी निभाया है। इसके लिए मैं NTPC CSR और HR को धन्यवाद देना चाहूँगी और साथ ही जेम्स एंड JLM गर्ल्स को आगे के भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़।
फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा कि रियासत से दूसरे ममालिक को बरामद करने के लिए वाफर मकदार में चावल मौजूद है। रियासत में उगने वाले चावल में ग्लूकोज की मकदार काफ़ी कम होती है, जो ज़ियादतीस के मरीजों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। FTCCI ने इस ज़िमन में तेलंगाना से चावल की बरामद आगे बढ़ाने के मौके के उन्वान से एक रिपोर्ट मुरतब की, जो रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर B विनोद को पेश की गई। इस रिपोर्ट में चंद रियासतों के ज़मीनी हक़ाइक़ को उजागर किया गया है। FTCCI के सदर रमाकांत, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के भास्कर रेड्डी व दीगर ओहदेदारों ने रिपोर्ट नायब सदरनशीन को पेश की। पार्लियामेंट की नई इमारत के तामीरी कामों का आगाज 15 जनवरी से होगा। मुल्क में मकर संक्रांति के बाद पहले सुबह को काम के आगाज का मुबारक दिन समझा जाता है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते एक 14 रुकनी हेरिटेज पैनल ने हुकूमत के पसंदीदा सेंट्रल वेस्टा प्रोग्राम के तहत पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर को मंजूरी दे दी। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इस नई इमारत को तामीर करेगा। काबिल गौर बात यह है कि नई तामीर की जाने वाली इमारत हिंदुस्तानी तहजीब कसरत में वहदत की अक्कासी करेगी। अयप्पा स्वामी के अक़ीदतमंदों के लिए मकर ज्योति का दर्शन इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता है। हर साल संक्रांति के दिन अक़ीदतमंदों को मकर ज्योति के दर्शन का मौका मिलता है। इसके साथ ही तिरुनाभारनम का जुलूस अयप्पा मंदिर पहुंच जाएगा। इस नज़ारे को देखने के लिए लाखों अक़ीदतमंद मुल्क के कोने कोने से सबरीमला पहुंचते हैं और मकर ज्योति को रास तौर पर देखने के लिए बेचैन और बेकरार रहते हैं। दूरदर्शन की जानिब से भी अपने नाज़रीन को मकर ज्योति दर्शन के लिए इस तक़रीब को रास्त नशर किया जाएगा। वाशिंगटन में कांग्रेस बिल्डिंग कैपिटल हिल पर हालिया रूनुमा हुए तशद्दुद के लिए उकसाने के इल्ज़ाम में अमरीकी अवानी नुमाइंदगान ने मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पेश की गई दूसरी तारीखी मुआख़ज़े की तहरीक को मंजूरी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी जमहूरियत की तारीख में एक ही मुद्दत कार में 2 बार मुआख़ज़े का सामना करने वाले अमरीका के पहले सदर बन गए हैं। अवानी नुमाइंदगान में 197 के मुकाबले 232 वोटों से मुआख़ज़े की तहरीक मंजूर हो गई, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के 10 अरकान पार्लियामान ने भी मुआख़ज़े की हिमायत में वोट दिया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सेनेट में भी अगर मुआख़ज़े की तहरीक मंजूर हो जाती है तो वो कभी भी व्हाइट हाउस में सदर का ओहदा नहीं संभाल सकेंगे और 2024 में होने वाले सदारत इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। 16 जनवरी से दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम का होगा आगाज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे इफ्तिताह। वैक्सीन की सरबराही में रियासतों के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं, हर्षवर्धन का तासुर। तमाम रियासतों को ज़रूरत के मुताबिक वैक्सीन की जा रही है सप्लाई। दिल्ली में आर्म्स फोर्सेस वेटरन्स डे का एहतमाम। गुज़िश्ता साल फौज के लिए रहा चैलेंजों भरा, आर्मी सरबराह MM नरवाने का इंकशाफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआख़ज़ा ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत के साथ मंजूर। 20 जनवरी को जो बाइडेन सदारती ओहदे का लेंगे हलफ। और दोनों तेलुगु रियासतों में संक्रांति त्यौहार का जोशो खरोश। सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म के बशमूल सरकर्दा कायदीन ने दी अवाम को मुबारकबाद।